हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है। होप करते हैं कि सब सही होगा। चलो लेट्स गो। एक बार चेक कर लो। या फाइन। द टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज मिनिमम इनिशियल एनर्जी टू फिनिश task. Okay, you are given an array task where task 1 is equals to actual I comma minimum I. Okay, there will be a array of array, I guess. Yeah. And then actual I is the actual amount of energy you spend to finish the ith task, and minimum I is a minimum amount of energy you require to begin the ith task. Okay, got it. ओके, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अभी टाइम हो रहा है 9:40 और सिंस ये हार्ड क्वेश्चन है तो इसमें मैं टारगेट रखता हूँ कि 1 आवर एंड 30 मिनट्स में इसको कंप्लीट करेंगे। इधर खुद से कर पाए तो ठीक है, नहीं तो हेल्प लेकर ट्यूटोरियल देख के एट एनी मीन्स अच्छे से समझ के इसको हम लोग 1 घंटा 30 मिनट में करेंगे। सो मेरे पास टाइम कितना है? अराउंड around 30 minutes, 10 and 11:10, या 11:10 तक मेरे पास टाइम है, राइट? सो लेट्स गो फास्ट। Actual I is a actual amount of energy you spend to finish ith task, and minimum I is a minimum amount of energy required to begin. Okay, so there is criteria like जो भी टास्क है उसको स्टार्ट करने से पहले मेरे पास इतना एनर्जी लेवल होना चाहिए और इतना एक्चुअल एनर्जी वेस्ट हुआ है, यूज़ हुआ है, सॉरी। फॉर एग्जांपल दिस मीन्स your current energy level is 11, so you cannot start the task. Yes, so minimum energy required to complete this task is 12, and my current energy level is at 11, so I'm not able to do that. So if my current energy level is at 13, then I will be able to finish the task, and the remaining task will be remaining energy after completing this task will be 3, right? You can finish the task in any order you like. Okay, return the minimum initial amount to reach. Okay, return the minimum initial amount of energy you need to finish all the tasks. Okay. ओके, सो बेसिकली मुझे सारा टास्क कंप्लीट करना है, राइट? मुझे इट मीन्स आई हैव टू कंप्लीट ऑल द टास्क। I cannot skip any one of them. So overall energy required to complete the all of these tasks is 1 plus 2 plus 4, that is 6 and 7. 7 energy is required to complete this task set of task, and minimum energy level is required will be, if minimum energy required, let's say um, minimum required to begin. Oh, I have a question that, let's say energy required to complete this task is 10, and I have 10 only left over, then it will be done, but next task will not be able to. Let's say I have 9, so I will able to complete this, and I will be left with 1, so I will not able to do that, right? Or let's say there is one more thing. So minimum initial amount required will be the maximum of the minimum of each of the task, right? So 8 will be the minimum answer. Can it be? It could be 8 and then 9.
Okay, it seems like binary search. Because I have the least boundary and I know at max. Okay, one more thing. uh, कितना एनर्जी टोटल चाहिए जिसमें सबका हो ही जाएगा? तो मैं अगर सबका समेशन कर दूँ तो वो मेरा मैक्स मैक्स बाउंड्री होगा, और मिनिमम जो मैक्सिमम होगा वो मिनिमम, लाइक इस केस में 8 मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर मैं कंसिडर करता हूँ, एक रेंज सेट कर रहा हूँ, 8 मेरा एल हो सकता है, तो राइट मोस्ट होगा 8 + 4 12, एंड देन 12 and 1 12 and 2 14. 8 to 14 could be answer, so my answer lies between 8 to 14. And for every point of time I have to check. So this is basically binary search on answer. It seems like binary search on answer problem. uh, so at any point of time I can, since I have the range, I can run over the binary search, and let's say I give these tasks and try to complete these tasks using mid of the range, in our, let's say, 8 to 14. So 14 minus 8, 14 minus 8. So 11 will be the average, right? 14 and 8. Oh wait, what I am doing? 14 plus 8 equals 22, and divided by 2 equals 11. Yeah, I was correct. So 11 will be the mid position. So I will try to answer, I will try to complete all these tasks having 11 as an initial amount of energy, and check whether it is possible to complete it or not. So it would be a, we need to think about how we will able to check if it is able to complete with this energy level. Then we can simply, so basically let me explain. L will be 8, R will be 22. It is coming from 14 plus, sorry, not 14, no, not 22, it's 14, which is coming from 8 plus 4 plus 2. Okay, and L is nothing but max of all actual I, right? No, max of minimum I. Okay. Max of all minimum I is A, and then at first iteration, if it is able to complete all the tasks with 11, that is mid, right? So we know the drill, right? We all know the binary search. We will just need to update the right as mid minus 1, and then check again. But the question is, how I will able to make a function is possible with task and the mid value, right? It will return me the true and true or false, right? So implementing this is possible will be a bit tricky. Let's say I'm starting with 11. Okay, so how will I able to do that? First of all, I need to think in this manner. Do I need to rearrange, or do I need to pick one specific task so that it will be optimal for the future? I need to understand. I need to think about it, right? I don't know if I'm not able to explain it in Hindi, in English. So let me explain it.
तो बेसिकली क्या करना है ना कि अभी मेरे पास 11 एज एन इनपुट इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या मैं अगर वन बाई वन इन ऑर्डर, जो भी ऑर्डर में, कोई भी ऑर्डर में जाऊँ तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या। सिंस ये क्वेश्चन में बोले कि कोई भी ऑर्डर में करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। कोई भी ऑर्डर में करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोई भी ऑर्डर में कर तो कोई भी ऑर्डर में कर सकते हैं, लेकिन कैसे, किस ऑर्डरिंग में करें, अगर कोई भी ऑर्डर में करते हैं उससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं करता है, यही मेन क्वेश्चन है। तो आते हैं इसके बारे में सोचते हैं। अगर मैं पहले 12, अभी मेरे पास 11 है, राइट। मैं जो अभी बेसिक है उसके हिसाब से चल रहा हूँ। 11 विल बिकम, अगर मैं ये इसको कर दे रहा हूँ, जिसके मिनिमम करने के लिए 2 चाहिए, हमारे पास 11 है और 1 माइनस होगा, सो 10 विल बी रिमेनिंग। एंड आफ्टर दैट 4 इज़ रिक्वायरमेंट एंड 2 इज़ needed, so 8 will be remaining. And in this problem 8 is needed and we will need the 4 only, so 4 will be remaining. Okay, तो अभी हमने ये क्वेश्चन को तो मतलब इसको इस ऑर्डर में ही करके तो कंप्लीट कर लिया। अभी चेंज करते हैं ऑर्डर को, ठीक है। अभी ऑर्डर को लाइक इस टास्क को ए बोलता हूँ, इस टास्क को बी बोलता हूँ, इस टास्क को सी बोलता हूँ। अभी ऑर्डर क्या था, ऐसा था, ए देन बी देन सी, राइट। अभी थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ए देन बी, सॉरी, सी देन बी। फिर एक और क्या कंडीशन हो सकता है, लेट्स स्टार्ट विथ बी देन ए देन सी, फिर अगेन बी देन सी देन ए, and this time I will start with C, then A, then B, and last one is C, then B, then A. So there can be a 1 2 3 4 5 6, and yeah, 6 2 to the power 3. Okay, 2 to the power 3, no, we can have 6 scenarios, 1 2 3 4 5 6. Okay, लेट्स स्टार्ट। अभी इस केस में क्या है कि 11 से स्टार्ट किए ए बी सी, मैं ए को पहले करूँगा तो मेरे पास 10 बचेगा, राइट। फिर सी करूँगा तो मेरे पास 6 बचेगा, राइट, 6 बचेगा ना, 4 माइनस होगा, फिर मेरे पास 2 बचेगा, ठीक है। अगर मैं इस कंडीशन से करता हूँ, बी सबसे पहले कर रहा हूँ, बी सबसे पहले करने का मतलब क्या हो गया, 4 एंड सो 11 में से मुझे बी पहले करना है, तो 9 बचेगा, एंड देन बी ए, देन 8 बचेगा, एंड देन -8 -4। सो इट सीम्स लाइक सारे सिनेरियो में 4 तो बचेगा ही, तो अच्छी बात है। ऐसे हमारा सॉल्यूशन एक सिमिलर टाइप ऑफ सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। मेरे पास 11 पहले है, मैं पहले बी कर रहा हूँ, तो 9 होगा, फिर 9 माइनस 4 5 होगा, फिर अगेन 4 बचेगा, ठीक है। 11 में से पहले 4 चला जाएगा तो बचेगा 7, नो, या 7, what I am saying, yes, correct. And then 7 minus 1 6, and then B -2 4। ये भी सिनेरियो कर लेते हैं। 11 minus 4, 11 minus 2 9, and then sorry 11 minus 4, so it will be 7 again, and then B, then it will be 7, no, 5, and then 4. So these are the scenarios, right? अभी सारे ही सिनेरियो देख के तो ऐसा लग रहा है कि सब में रिमेनिंग 4 है, राइट। सब में रिमेनिंग 4 है। आई डोंट थिंक कि रिमेनिंग 4 कोई इम्पैक्टफुल चीज़ है।
अगर 8 से स्टार्ट करता तो 8 9 एंड देन 8 से स्टार्ट करता तो इसको करने के बाद 7 देन 5 एंड देन आई एम थिंकिंग कि अगर सी ऑर्डरिंग तो कोई भी ऑर्डरिंग से कर सकते हैं, तो मैं इसको शॉर्टिंग भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ना थोड़ा सा अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैं अभी इसको फिक्स इतना जल्दी नहीं करना चाहता कि कुछ भी नहीं करने से चलेगा। या फिर कोड तो लिख ही सकते थे, कोड लिख के टेस्ट करेंगे तो वो तो चल ही जाएगा। अभी दूसरा टेस्ट केस फेल हो जा सकता है। बेहतर होगा कि कुछ बड़ा कॉम्प्लेक्स टेस्ट केस उठाए, पहले देखें कि हमारा सॉल्यूशन फीजिबल है या नहीं। टास्क का लेंथ 10⁵ है, सो n log n इज़ फीजिबल, राइट? एंड सॉरी, लेट्स सी इन्होंने क्या किया है। इन्होंने पहले फिफ्थ टास्क उठाया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट एंड फोर्थ एंड सिक्स, राइट? और इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 3 2 1। क्यों 3 2 1 उठाना, मुझे ये समझ नहीं आया। मतलब देर इज़ नो सेंस टू पिक द 3 2 1। हाँ, एक और बात है, अगर मुझे ऐसा सोल्यूशन ढूंढना है कि जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट हो ये m का, तो मैं ऑब्वियसली ऐसा बंदा को पहले, ऐसा टास्क को पहले करना प्रेफर करूँगा जिसका, ऐसा टास्क को करना पहले प्रेफर करूँगा जिसका 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 रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा हो, राइट? तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन कि मेरा ये सेकंड इंडेक्स का रिक्वायरमेंट लाइक ये हाईएस्ट हो और मिनिमम मिनिमम लेफ़्ट ओवर्स हो, या लाइक कुछ ऐसा। अगर अगर मैं आता हूँ, इस पे आता हूँ, ठीक है? नीचे वाला एग्ज़ाम्पल को पकड़ेंगे। अगर ये ऐसा है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा ना हो के सारे जगह पे 8 8 होता, 8 and then 8, then this will be a bit nice question to think. 2 4 एक यहाँ पे नहीं, 2 मत रखो, यहाँ पे 3 रखो, 8। सो अभी क्या है कि सबका 8 8 8 है। अगर मैं 8 को उठाऊँ, सी, हाँ, मज़ा तब आएगा जब मैं एकदम बेयर मिनिमम कर दूँ, 5 5 5 रखो इसमें। अभी अभी क्या है कि सब में 5 नीडेड है, ठीक है? तो कौन सा उठाना करेक्ट है? अगर अगर मैं इसको, ये दोनों को अभी थोड़ा सा नेगलेक्ट भी कर देता, अगर सिर्फ ये दोनों होता, तो अगर ऑर्डर तो मैटर तो करता है, राइट? अगर ये इसको मैं पहले उठाऊंगा तो 5 - 1 4, देन ये फेल हो गया, राइट? या फिर अगर इसको मैं 6 भी कर दूँ, चलो 6 भी कर देता, 6 है मेरे पास इनपुट भी 6 है, तो 6 में से एक जाएगा, 5 बचेगा, ये तो हो गया, राइट?
ओके चलो, मेरे को कुछ तो शॉर्टिंग करना है। सी अभी ए है कॉमा बी है, ठीक है। मैं इसको ऑर्डर कैसे कर सकता हूँ? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग, ये असेंडिंग में हो या फिर दोनों दोनों डिसेंडिंग में हो। रुको, पहले बेसिक जो होता है डिसेंडिंग कॉमा डिसेंडिंग, ठीक है। फिर दोनों असेंडिंग, वट एवर छोड़ो, असेंडिंग कॉमा असेंडिंग, ठीक है। या फिर असेंडिंग कॉमा डिसेंडिंग, या फिर डिसेंडिंग कॉमा असेंडिंग। अभी कुछ और कंडीशन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, राइट। असेंडिंग असेंडिंग, डिसेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग, डिसेंडिंग असेंडिंग। ये चार ही सिनेरियो है। अब मुझे ज़्यादा कुछ सोचने का नीड नहीं है एक्चुअली। ये चार सिनेरियो है, ये चारों सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं चला दूँ, हाँ, दिस इज़ सो नाइस। अगर ये चार सिनेरियो है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये एरे को चार एरो बना लो। क्योंकि सोल्यूशन तो पता नहीं भाई, सोल्यूशन तो पता नहीं किस सोल्यूशन में नहीं चलेगा। सोल्यूशन यही है कि मेरे पास ये चार सिनेरियो है, और ये चार एरे एरे जो है, ये जो एरे ऑफ एरे है, इसको इस चारों सिनेरियो के हिसाब से चार एरे बना लो, राइट। एक इसके हिसाब से बना लो, 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 और फिर एक बार इसके हिसाब से फिजिबिलिटी चेक कर लो, इसके हिसाब से चेक कर लो, इसके हिसाब से चेक कर लो, या फिर इसके हिसाब से चेक कर लो। बट द क्वेश्चन इज़ कि क्या एक बार भी करेक्ट होने से उसको करेक्ट मानेंगे? यस, यस, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक अगर मैं इसको एम को 11 की तरह भेज रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इस सिनेरियो पे ये सक्सेस हो जाए, राइट। और अगर मैं एम को कुछ और सेट होता है, एम को जब मैं इससे छोटा करके 8 और 9, लाइक 19/2, डेट इज़ 18, 9, इट विल बी 9, ठीक है। अभी नेक्स्ट M9 होता तो ऐसा हो सकता था कि ये सिनेरियो करेक्ट हो, राइट। लाइक आई डोंट एक्चुअली हैव द प्रूफ कि कौन सा सिनेरियो करेक्ट होगा, आई डोंट हैव। और अगर लॉजिकली सोचा जाए, ग्रीडी सोल्यूशन वाइज सोचा जाए, तो ग्रीडी सोल्यूशन तो यही होगा कि मैं रिक्वायरमेंट का जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है उसको मैं डिसेंडिंग करूँ, और आउटपुट मैं ये कंडीशन को कंसिडर करूँ। मुझे लगता है कि ये ग्रीडी सोल्यूशन हो जाएगा, ये ग्रीडी सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन आई कैन नॉट प्रूफ डैट कि ये ग्रीडी सोल्यूशन वर्क करेगा कि नहीं। दैट इज़ वन केस। अभी लेट्स से इन्होंने जिस हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कि ये ग्रीडी के हिसाब से पहले इसको सॉर्ट करता है, ठीक है। अपने पास ये है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता हूँ ताकि शॉर्ट करने में इजी हो मुझे, राइट। अभी मेरा मेरा गोल क्या है कि मैं इसके हिसाब से पहले डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से चलूँगा। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर चले तो ये कम्प्लीटली उल्टा होना चाहिए, राइट। सो 12, 11, 10, 9, 8, 7, सो इट्स कम्प्लीटली। प्रायोरिटी किसको दिया? ये प्रायोरिटी पता नहीं किसको दिया। ओके, ओके, ओके। सो ऐसा भी हो सकता है कि ये भी सोल्यूशन हो सकता है कि ये ए जो डिफरेंस ऑफ ए आएगा ना, ए एंड बी, इसको डिसेंडिंग पे कर लो, या फिर डिफरेंस ए कॉमा बी होगा ना, इसको असेंडिंग पे कर लो। से डिफरेंस मैटर तो कर रहा है, इस सिनेरियो में मैटर तो कर रहा है। क्यों 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 इन्होंने कैसा किया पहले देखते हैं, रुको।
पहले उन्होंने किया फिफ्थ टास्क को, दैट इज़ नाउ द एनर्जी लेवल इज़ 5 माइनस करना, या 0 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5, तो इनको 1 2 3 4 5, ये पहला स्टेप है, ठीक है। एंड देन सेकंड वाले को फर्स्ट सेकंड, ये मेरा सेकंड स्टेप है, और फिर थर्ड वाले को थर्ड बनाया, ठीक है, ये मेरा थर्ड स्टेप है, और फिर फर्स्ट वाले को बनाया, ये मेरा फोर्थ स्टेप है, फिफ्थ में फोर्थ वाले को रखा है, ये मेरा फिफ्थ है, एंड सिक्स्थ को सिक्स्थ ही रखा है, ठीक है। अभी मैं इसको एक क्विकली रीअरेंज नहीं करता हूँ, आप लोग समझ जाओ कि इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर कर दिया, ठीक है। अभी मैं एक और डिफरेंस देखता हूँ, इसका डिफरेंस 6 है, इसका डिफरेंस भी 6 है, इसका डिफरेंस कैसा है, 6 है, वाओ दिस इज सो क्रेजी, वो ब्रो सबका डिफरेंस 6 है, दैट्स क्रेजी, फाइन। तो ओके, देयर कैन बी अ थर्ड ऑपरेशन ऑफ ए कॉमा बी, तो यहाँ पर ये सारा तो सिनेरियो करेक्ट है ही, अभी इनको ऐसा करना होगा, कॉपी, दैट्स द क्रेजी पार्ट ब्रो। नाइस, बट लेट्स सी, डिफरेंस मैटर तो करता है यार, ऐसा हो सकता है कि डिफरेंस मैटर तो करता है। ओके, मैं इसको नॉर्मल जाने से क्यों नहीं कर सकता था, सो आंसर इज़ 27 राइट, 27 माइनस 1 26 माइनस 2 24 माइनस 3 19, सॉरी 26 24 21 एंड 17 12 एंड देन 6, सो आंसर तो आ रहा है, लाइक आई डोंट थिंक इतना सोचने का नीड है, राइट। पहले इसको फेल करता है, राइट, एक ग्रीडी सोल्यूशन, एक बेसिक सोल्यूशन लिखते हैं और उसको फेल करते हैं, और वो फेल होता है, देन वी विल थिंक अबाउट इट।
Why it is failing? I don't get it. Let's debug. Okay. अभी अपना एक दो तीन, ये तीन आया। एल को मैंने -1 से इनिशियलाइज़ किया, और इसको इससे, एंड करेक्ट है। लेट्स प्रिंट। इस पॉइंट पे मान लो 11 तो एक आंसर हो ही गया, राइट? अभी सीन ऐसा है कि एल तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे इस सिनेरियो में क्या हो गया? मीडियम, मिड क्या आया होगा? मिड आया होगा 10 + 8, 18/2, इट विल बी 9, राइट? सो 9 के लिए चेक होना चाहिए था। सो लेट्स सी 9 के लिए टेस्ट हुआ है कि नहीं। किस किस के लिए ये चला है, ये एक बार देखते हैं। ठीक है। 10 के लिए चला, 9 के चले, 9 के लिए फेल हो गया। हाउ कुड दिस बी पॉसिबल ब्रो? व्हाट द crazy thing just happened? I have only 1 hour left. Okay, wait. 40 minutes is done. I allocated 90 minutes, right? 1 hour 30 minutes. So among 90 minutes, exactly 40 minutes is over. So what's 9 minus 4? 9 minus 4 is 9 minus 3 is 6. So 9 minus 4 is 5. Okay. Exactly 50 minutes is remaining. I don't think. Wait, let's not give up too quickly. Uh,
how did it fail for 9? It's impossible. Wait, let's say 9 and then 0 and then this, and then it is checking. So my solution was that simple, right? I will go for all of one by one. Okay, for 9. Okay, I have 9. 9 is greater than 2. 9 is greater than 2. Is it correct? Yes, 9 is greater than 2. So it will run and then it will deduct 1 from 9, right? So it will deduct 9 minus 1. So it will become 8, okay? And then 8 is greater than 4, correct? And then I will deduct 4. Okay, wait. Okay, deduct 2. So it will be 9 minus 2. What it will be? 9 minus 2. Sorry, 8 minus 2 is 6. And then answer for 6 is failing. What? How? This is. Okay, this is crazy. For 9, it is not passing the normal test case. But for 8, it is passing the normal in ascending order. Let me check. 8 में से 8 चाहिए, 1 चला गया, 7 बचा, 4 चाहिए, 7 है, 7 में से 2 चला गया। अरे तब ये चल कैसे रहा है? ओके 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 ओके, क्रेजी स्टफ भाई। यहाँ पे हमने क्या किया है? हमने 11 के लिए चेक किया है, राइट? जबकि आंसर 8 के लिए आ रहा है। ओके, सो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग थिंकिंग। एक बड़ा नंबर के लिए सब सही चल रहा है, जैसे नंबर छोटा हो रहा है ये एल्गोरिदम गलत हो जा रहा है, राइट? अभी एल्गोरिदम गलत हो जा रहा है, तो वही सिनेरियो है यहाँ पे। आइदर सिर्फ ए बी को कंसिडर करना है शॉर्टिंग करने के लिए, या फिर ए बी और डिफरेंस ऑफ ए बी को कंसिडर करना है शॉर्टिंग करने के लिए। अभी रुको, अभी इसने क्या किया? इनका डिफरेंस है 1, इनका डिफरेंस है 2, इनका डिफरेंस है 4, ठीक है? तो 4 को पहले किया, फिर 4 को पहले किया, फिर 4 1 4 2 एंड ये। ओके, so we can short it. Okay, how will I prove this? प्रूफ एकदम नहीं है। प्रूफ एकदम भी नहीं है, इसके हिसाब से चलना पड़ेगा क्या? ओके, वेट, इसमें हमने देखा था 6 6 6 है, इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है? 1 2 3 4 5 2 2 1 1 एंड 1 एग्जैक्टली। चलो मत उतना सोचते नहीं है, शॉर्ट कर देते हैं, डिफरेंस के हिसाब से शॉर्ट कर देते हैं। सो आई एम वीक विद द कंपैरेटर, आई डोंट नो हाउ टू शॉर्ट इट। ओके, आई विल लर्न इट, आई विल टेक हेल्प फ्रॉम AI. La 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 la. Okay, okay, I know what I want to do, but I don't know how to write the code. So basically I want to, like, before like I want to just sort this task. Like it's on me, right? I just want to sort it once forever. But how to sort it? I don't want to sort it on the natural sorting. I don't want the natural sorting, default sorting. I want to have the comparator. Comparator, yes. I need to write some. Okay, okay. I'm opening my Chat GPT and I will learn from it. I will also share what prompt I gave it. Hi GPT, I want to sort a 2D array in Java, but my
sorting criteria, sorting criteria uh, is based on the difference of A and B, A and B in descending order. Where A is tasks of A. Wait, how I will. Example, I have task array which has 2 comma 5 and then 2 comma 8, 2 comma 8 and then 8 comma 9. Okay, diff is 5 minus 2 3, 8 minus 2 6 and 9 minus 1 equals 1. So sorting will be so it will be descending, so answer will be like 6 3 1. So what was the 6? 2 comma 8 and then 2 comma 5 and then 8 comma 9 is final sorted output. Okay, it has given me the comparator array dot sort task. Okay, within the sort I have passed the comparator, and what it takes to value A and B, we all know that, and A and B. So diff A and diff B. Oh, okay, what it is? A of I minus A of 0, comma B of 1 minus B of 0, and I need to return it B of. Okay, समझ गया. So simply this is the solution I was looking for. This code. It was easy. मुझे पता था, मुझे सोचना चाहिए था, मैं गलत किया. सॉरी, अगली बार से अपने से खुद से करूँगा. अभी रुको. मैं क्या करता हूँ, मुझे ये भी चेंज करने का भी नीड नहीं है. जस्ट रन दिस. सी, दैट्स द मेन थिंग. अभी सारा डिपेंड करता है ना कि जो मेरा ग्रीडी सॉल्यूशन का एजम्पशन है वो करेक्ट है कि नहीं. सब उस पर डिपेंड करता है. क्रेजी, दिस इज क्रेजी. वाओ, आई एम सो हैप्पी. आई एम रियली हैप्पी. So that's all for the today, guys.
and I'm very happy with this one attempt solution. This is crazy. Thank you so much. Bye bye.